السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تصویر کیوں منع ہے؟ کیا اسلام سے پہلے تصاویر بنائی جاتی تھیں؟ تو آپ جتنے بھی اینشنٹ مذاہب ہیں اس کو دیکھیں گے تو ان میں تصاویر ہیں، چاہے وہ توحید والے تھے یا توحید کے خلاف تھے، سب میں آپ کو مختلف قسم کی تصاویر نظر آئیں گی۔ یہاں تک کہ اگر آپ تخت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو اس کی تصاویر، ان کے پاس جو تخت تھا اس پہ شیر کے نشان، شیر کی شکلیں، پرندوں کی شکلیں، سانپوں کی شکلیں یہ بنی ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ جولری کا جو تھا وہ جڑاؤ ہوتا تھا، تو وہ جولری ان کے ساتھ ٹچ ہوتی تھی، یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں کہ اس میں انہی کے جو گھر والے تھے وہ بت بناتے تھے، بت بناتے بھی تھے اور اس دور کے لوگ اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کرسچن میں بھی آپ کو تصاویر اور بت ملیں گے، جوڈیزم میں بھی آپ کو تصاویر اور بت ملیں گے، پرشین میں بھی آپ کو تصاویر بت ملیں گے، گریک میں بھی آپ کو تصاویر بت ملیں گے، ایجپٹن کلچر کو دیکھیں گے وہاں بھی آپ کو تصاویر اور بت ملیں گے۔ تو پہلے دور میں تصاویر کا یا مورتیاں بنانا جو تھا وہ منع نہیں تھا، لیکن ان کی پوجا کرنا یا ان کی عبادت کرنا یہ منع تھی۔ جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے ان کو ہدایت دینے کے لیے تو وہ ان کو منع کرتے تھے ان کی پوجا یا عبادت سے، ان کی ورشپ سے ان کو پروہیبٹ کرتے تھے کہ آپ نہ کریں اسے۔ یہاں تک کہ وہ مقدس مقامات جو اللہ کے گھر تھے، جیسے ہمارا بیت المقدس یا بیت اللہ شریف جو کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ شریف ہے، اس میں بھی لوگوں نے، قبائل نے بت رکھے ہوئے تھے اپنے اپنے قبائل اور خاندانوں کے حساب سے، اور ان میں بڑے جو تھے لات، منات، عزا ان کے مشہور تھے۔ اسی طرح دوسری جگہوں پہ جائیں گے تو آپ کو دوسری اشکال کی جو تصاویریں، بت ہیں وہ نظر آئیں گے۔ جب آخری نبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آیا تو بت پرستی منع کی گئی، مورتی پوجا، تصویروں کی پوجا منع کی گئی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی احکامات نازل کرتا ہے ان کے کچھ نہ کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ پوجا وہ الگ بات ہے، لیکن دوسرے بھی انہی کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ہی بھلے میں ہوتے ہیں، ہمارے ہی فائدے میں ہوتے ہیں۔ واقعات ملتے ہیں پرانے دور کے، اس دور کے، اس میں کچھ شرعی جو ہے رعایتیں بھی تھیں، جیسے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ
सलाम अल्लाह अलैहा को एक घोड़ा था जब आप छोटी थी, उस घोड़े को पर थे। तो हादीस में आता है हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपसे इस्तफसार किया कि इस घोड़े को पर कैसे है। तो आपने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े को जो पर थे उसी की तरह। तो बच्चों को खिलौनों के हिसाब से अगर आप कोई खिलौना बना हुआ होता है तो वो मना नहीं है, लेकिन अगर बड़े हैं तो बड़ों के लिए मना है। जिस घर में तस्वीर होती है, बुत होता है, मूर्ति होती है या कुत्ता होता है, उस घर में फरिश्तान रहमत नहीं आते। दूसरे फरिश्तों को मना नहीं है, वो और चीज़ है, लेकिन फरिश्ता रहमत नहीं आएंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आदमी समझे कि मलकल मौत भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हैं। इसी तरह कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसमें तो रोमन एम्पायर में जो था उन्होंने कुछ सवालात किए थे, तस्वीर दिखा के पूछा गया था। जिन तस्वीर के बारे में पूछा गया था उनमें अंबिया अलैहिस्सलाम के कदीम तस्वीर थी, सहाबा कराम की भी तस्वीर हो सकती है या कुछ और। उनका तज़किरा आपको सीरत या अहादीस के या जो हवाला जाते हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो उनमें यजीद से भी पूछा गया और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया था। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उनकी जो है मुफस्सिल तफसील बयान की। इसी तरह दूसरे वाक़यात भी आते हैं कि हुक्मरान जो होते थे हमारे मुसलमान हुक्मरान, उनके दरबारों में जो थे तस्वीर वगैरह बनी हुई होती थी, उनके तख्तों पे, उनके ताजों पे, इस तरह से। तो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में ये चीज़ें बनी हुई होती हैं। अब आपके उस ख़ास सवाल का मैं बताता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या है कि हमें जो है तस्वीर की मना की गई है। दरअसल तस्वीर की मना से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या हमारे मुक़द्दस आइम्मा कराम जितने भी गुज़रे हैं, उनकी अगर तस्वीर नहीं है ओरिजिनल, तो जब दज्जाल उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। क्योंकि फितना दज्जाल जो है वो क्या करेगा, वो आपको आपके बड़े दिखाएगा, आपके बड़ों की सूरतें दिखाएगा, आपके बड़े आपसे बात करेंगे, आपके बड़े आपसे गुफ्तगू करेंगे। वो जो हमजाद शयातीन या वो अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को जो धोखा देगा, उसका जो आना होगा वो इस्फान में आएगा। इस्फान में जब वो आएगा तो लोगों को धोखा देगा, और धोखे के लिए वो साइंसी तरीक़ेकार भी इस्तेमाल कर सकता है, जादुई तरीक़ेकार भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर साइंसी तरीक़ेकार को देखा जाए तो आज के दौर में आप 7D टेक्नोलॉजी देख लें। 7D टेक्नोलॉजी में आपको कोई भी चीज़ हूबहू उसी तरह दिखाई जा सकती है। अगर तस्वीर होती तो वो हमारे मुक़द्दस हस्तियों की सूरत लेके उनकी आवाज़ के ज़रिए हमें कहता कि ताबेदारी करो, और लोग उनकी तरफ धड़ाधड़ चले जाते और लोग गुमराह हो जाते। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला का हम पे और मुसलमानों पे एहसान है, जितने भी हम मुसलमान हैं, इस्लाम पे ये एहसान है कि उन्होंने इस चीज़ की मना की जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़े फितने से महफूज हो जाएंगे। जिन लोगों ने भी तस्वीर बनाई हैं
किसी भी बड़ी हस्ती की, चाहे वो ऐमा कराम हो, चाहे वो उनके पीर व मुर्शिद हों, तो वो उनकी अपना ही धोखा है। जब दजाल आएगा तो वो आसानी से धोखे में आ जाएंगे। तो जब मैंने इस पे गौर किया तो मुझे जो दिल में जो ख़याल आया कि इसका बड़ा फ़ायदा हमें यही है कि अगर हमारे मुक़द्दस तस्वीर जो हैं या मुक़द्दस जो हस्तियां हैं उनकी तस्वीर नहीं हैं तो उससे हम धोखा नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, जब अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा बुलंद मकाम दिया है तो उन जैसा किसी और को बनाया ही नहीं है, तो हम क्यों उनकी मिसाल दूसरी बनाएं। ये हमारी अपनी ही कोताही है। और जिन लोगों ने खुद बनाया है वो अल्लाह ताला को खुद ही जवाब दे। तो बहरहाल इस्लाम में तस्वीर का बनाना इसीलिए मना था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से एक तस्वीर बनाने वाले ने कहा कि मेरा रोज़गार ये है, आप मुझे इजाज़त दे दें। तो आपने फरमाया कि जानदार अशिया की आप तस्वीर नहीं बनाएं, लेकिन अगर आपको फिर भी आपका रोज़गार है तो आप पेड़ पौधों, फूलों और फलों के जो है तस्वीर बना लें, उससे आप अपना ज़रिया माश कमाएँ। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।